Welcome students. Students, it is 27 July 2024 and we are here with the Hindu vocabulary drill, and here we are covering some synonym, anonyms, one word substitution, idiom, phrases, and also discussing one SSC CGL paper, question paper. Okay, stay with us. So if you have not subscribed our channel, please subscribe that. So we are starting with the first news, that is one news, front page news. It is extract of that news that states have unlimited right to tax mineral rich lands. Here from this news we have taken 5 words. One word is verdict. Constitution bench in 8.8:1 verdict. तो ये हमने वर्ड लिया है verdict. Holds that parliament through mines and minerals cannot restrict states from legislating the taxation of mining lands. तो इस सेंटेंस में वर्डिक्ट वर्ड और रिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया. व्हाट इज वर्डिक्ट? वर्डिक्ट जो है वो निर्णय को कहा जाता है कि निर्णय किया, उन्होंने फैसला किया. इट इज अ डिसीजन ऑन डिस्प्यूटेड इशू in a civil, criminal case or an inquest. So in this synonym, we can take that it is judgment and decision, and anonym indecision and uncertainty. So this is verdict. And second, we have taken the word restrict. So here it is restrict. Restrict states. Pratibandh nigana. It is pratibandh lagana. तो इसको हम कहेंगे, सो इट इज टू लिमिट द साइज, अमाउंट एंड रेंज ऑफ समथिंग, दैट इज लाइक दैट. सो रिस्ट्रिक्ट synonym are limit, confine, and anonyms are free, allow, permit, like that. So these are the two words here. Please note these things. After then we take another word, revenues. So in this, any dilution in taxing power of state legislature will necessarily impact their ability to raise revenues. What is revenue? We can say that it is राज्य की आय, आमदनी, आय. So it is income, especially when of an organization or and of a substantial nature. So I means synonym income and earning, and और इसका जो उल्ट opposite word है anonym, it is expenditure or loss. So federalism, then next word we have taken federalism. Physical federalism entails. What is federalism? Federalism is संघवाद. संघ, जैसे भारत एक संघ है, फेडरलिज्म. सो इट इज फेडरल प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें बहुत सारे यूनिट मिलके एक यूनियन बनाते हैं. So that is federalism. In this it is federation, same meaning, संघवाद, union, and anonym it is unitary or centralized. तो इसको आप हम ऐसे समझेंगे कि इंडिया जो फेडरलिज्म उसमें स्ट्रक्चर है तो स्टेट्स को भी पावर है, बट इट इज आल्सो यूनिटरी क्योंकि यूनियन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखी गई है. Then royalty not a tax. Next word we have taken royalty not a tax. Royalty is not a tax. So this is in news. What is royalty? So a sum paid to patentee. Patentee होता है जिसने कोई अपनी नई खोज की है उसको पेटेंट करवाया है. For the use of patent. So anybody if using his patent, he will pay something to that person, patentee. या फिर to an author composer for each copy of book sold, for each public performance of a work. So royalty means fee,
payment, stipend. And opposite of this anonym is penalty, fine, and charge. Now come to this point. SSC CGL 14 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 से हम कुछ पॉइंट्स लेके आ रहे हैं कुछ. फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनोनिम्स. Select the most appropriate anonym of the underlined word. He was compelled. This is underlined. Compelled by everyone to join the group. So in this, when we say compelled, compelled means to get the work done forcefully. So in this, if we say get the work done forcefully, what is induced? Induced means प्रेरित करना. तो फोर्सफुली नहीं कर रहे हम, प्रेरित करके करवा रहे हैं, प्रेरित करना. कन्फेस्ड मतलब मानना, इट इज मानना. ऑब्सक्योर्ड मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट. डेम्यूर का मतलब है कि रेज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रेज करना, रेज ऑब्जेक्शन. तो इस तरह से अगर हम चारों वर्ड्स देखें तो इनमें इंड्यूस्ड जो है दैट इज द करेक्ट सिनोनिम. सॉरी सिनोनिम नहीं, इसमें एनोनिम उल्ट. कंपेल का मतलब है कि उसमें फोर्सफुली कुछ करवाना. इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना, प्रेरणा से. देन इडियम. सो वी हैव एन इडियम टू किक द बकेट. So appropriate meaning is, so to be ill, no. Be sad, be happy, it is to die. So to kick the bucket is an idiom meaning to die. So for vocabulary trick it is familiarize yourself with common idioms and their meanings as they often comes in exam. ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. रीडिंग जितनी आप ज्यादा करो और कम से कम 250-300 जो वोकेबलरी सॉरी इसमें ईडियम्स आती हैं उनको आप याद रखो और बहुत सारा रीडिंग करो, बहुत सारी रीडिंग करो इंग्लिश. तो ये इजी होता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता. अब नेक्स्ट फिर एनोनिम पे क्वेश्चन है. तो अंडरलाइंड वर्ड, डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन. एडेज मीन्स हिंदी में कहेंगे कहावत, मुहावरा. मिसकंस्ट्रक्शन वर्ड आ जाता है. मिसकंस्ट्रक्शन मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग. और रीबूक का मतलब आता है जैसे किसी को फटकार लगाने, ठीक है, फटकार लगाने. कोर्ट रीबूक्ड द पुलिस, पुलिस को फटकार लगाई. डेयर का मतलब सिंपल है, हिम्मत दिखाना. एडिक्शन का मतलब है कोई नशा करना जब किसी तरह से. तो कहावत का मतलब बन जाता है अ वाइज सेइंग और प्रोवर्ब जिसमें अच्छे से कुछ कहा गया हो. और मिसकंस्ट्रक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो अच्छे से नहीं कहा गया हो. सो दिस इज द एनोनिम ऑफ दिस. एनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट ठीक है जी. देन एनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट. नाउ इसमें हमें जो कैलॉस का, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट ब्लैंक है, कैलॉस वर्ड दिया गया है. टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक. सो कैलॉस. सो हाउ टू डू दिस. अब इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे रैशनलिस्टिक, अनसिम्पथेटिक, सिंपथेटिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक. तो इसमें जो कैलॉस है, कैलॉस मीन्स इनसेंसिटिव, किसी के दर्द को महसूस ना करना. क्रूअल, डिसरिगार्ड फॉर अदर, दूसरे की फीलिंग को परवाह ना करना. सो अगर हम सिंपली देखें दिस इज अनसिंपथेटिक. तो सेम वर्ड तो अनसिंपथेटिक है और अपोजिट वर्ड जो है दैट इज सिंपथेटिक, दूसरे को, दूसरे की दर्द के प्रति सेंसिटिव होना. बाकी ये दो वर्ड जो आए हैं रैशनलिस्टिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक. तो आप इसको नॉन डिप्लोमेटिक कहेंगे तो गैर राजनयिक और रैशनलिस्टिक कहेंगे तर्क
वाद, तर्कवाद, तर्क देना. Next is synonym. Select the most appropriate synonym of the given word from the sentence. It is ready. So she was preparing dinner in an organized manner using well-equipped tool while listening to radio. तो इसमें सिंपली इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, प्रिपेयर करना ही है, प्रिपेयरिंग. क्योंकि अगर हम देखें रेडी का जो सेम वर्ड लिसनिंग तो हो नहीं सकता, ऑर्गेनाइज होना, इक्विप होना, ये तो कुछ हो नहीं सकता, सीधा ही प्रिपेयरिंग है. इसमें उन्होंने वोकैब से ज्यादा हमारी जो सेंस चेक की है, कॉमन सेंस, कि हम क्या इसको कर पा रहे हैं या नहीं. देन इट इज सिनोनिम. मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड हॉस्टाइल. हॉस्टाइल है किसी के प्रति नफरत शो करना, नफरत. तो प्लेजेंट तो है नहीं ये. हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी. एम्फेटिक होता है जोरदार. तो ये तो कुछ नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर इज अनफ्रेंडली. नेक्स्ट इसमें आज लेते हैं सेंटेंस करेक्शन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. तो ये अंडरलाइन सेगमेंट है पर्सनल व्यू. तो ये फ्रेज बन गया. द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू by giving him an intellectual spirit elevates him above the beasts of the field. तो कहा जाता है भगवान ने हमें अपने पर्सनल व्यू में बनाया है. तो व्हाट इज दैट? ओन ग्लोरी, ओन कैपेसिटी, या ओन इमेज, या ओन आइडिया. सो करेक्ट फ्रेज इज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. अपनी इमेज में बनाया है. नेक्स्ट इज एनोनिम. So anonym of word optimistic. Optimistic means आशावादी होना. So after the incident, Radha prepared herself to stay positive even in gloomy days. So out of that, we have to find out which word, either positive or gloomy or incident or stay. We have to take one answer out of these फोर. स्टे रहना, इंसिडेंट घटना. पॉजिटिव का मतलब है कि खुश होना. तो ऑप्टिमिस्टिक भी आशावादी है. एंड सो वी कैन से ऑप्टिमिस्टिक इज सिनोनिम टू पॉजिटिव. बट ग्लूमी, what is gloomy? We have to find out anonym. Gloomy is sad and without much hope. So right answer is gloomy. Then one word substitute. Select the option for to can be used as one word substitute. So in this, a person who believes that laws and governments are not as necessary. तो वो पर्सन जो ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है. दीज आर अनार्किस्ट. अनार्किस्ट. एंटागोनिस्ट होते हैं विरोधी, किसी चीज का विरोध करने वाले. एंटी क्राइस्ट कहेंगे जो एंटी क्राइस्ट, ईसा का विरोध करने वाले, ईसा का विरोधी, हजरत ईसा, उनके विरोध में जो है. एडवर्सरी सिंपल है, डिफिकल्ट टाइम, कठिनाइयां. तो राइट आंसर इज एनार्किस्ट. देन इट इज इडियम मीनिंग. सो इडियम में है मिस द बोट. तो मिस द बोट ये इडियम है. Missing a good opportunity, missing your medium of travel, missing good moments of your life, being too late. So when जब हम कहते हैं कि बिल्कुल literal meaning तो ये है missing your medium of travel, तो ये ध्यान रखना whenever we do the idioms, the idiom does not have the literal meaning as it possesses. So देन गुड मोमेंट्स ऑफ लाइफ, तो याद करना कि हम कुछ उनको गुड मोमेंट्स को मिस कर गए हैं. तो उन याद करना नहीं, मिस कर गए हैं नहीं, गुड अपॉर्चुनिटी. सो मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन दीज 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2023. सो होप सो आपको ये पसंद आया होगा.
सो आप हमारे साथ बने रहें, हम हर रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स लेके आ रहे हैं. So these words are quite relevant to your SSC examination. We are taking the toughness level of these questions in such a way that they could relate the SSC examination, banking examination like that. So students सब्सक्राइब करें चैनल को. हमारा इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें ये आपको मिलेगी. और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.